Students, today I will discuss application of Bernoulli's theorem. जो बर्नौली के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वो डिस्कस करेंगे. इफ फ्लक्स वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, दैट मीन्स द्रव का प्रवाह वेग, इसको फिर हम लोग द्रव का बहिस्राव वेग बोलते हैं. बहिस्राव वेग मतलब ये है किसी भी होल से जो है वाटर जब बाहर निकल रहा हो उस समय उसकी क्या वेलोसिटी होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. It will be calculated with the help of Bernoulli's theorem. Now see here, consider a tank which is filled with a liquid. एक टैंक लिया गया है जिसमें क्या हुआ है, वाटर फिल्ड है. करना क्या है, ये जो वाटर फिल्ड है इसमें इसकी जो डेंसिटी है उसको हमने रो लिया हुआ है, और जो फ्री सरफेस वाटर का है वहां से जो टैंक का बेस है वहां से इसकी हाइट जो है मैंने दिखाई है h. एंड देयर बी ऑरिफिस, जो टैंक हमारा है उसमें मैंने ये क्या दिया है, होल दिखाया हुआ है. ऑरिफिस में तो छिद्र होता है, और उसकी जो डेप्थ है वो फ्री सरफेस से h है. ये जो h दिखाई है वो फ्री सरफेस से h मीटर है. ऑब्वियसली द ऑरिफिस विल बी एट h माइनस h. जो ऑरिफिस होगा वो ग्राउंड से, जो आपका टैंक है, टैंक के बेस से उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, h माइनस h होगी. नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट. वेरी क्लियरली यू नो ऑल ऑफ यू, आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हियर दिस इज द अपर सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड हियर नियर द ऑरिफिस, मतलब द्रव का जो पृष्ठ है ऊपरी सतह पर, और जो भी पानी या द्रव्य निकलेगा यहाँ से ऑरिफिस के पास, वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो क्या होगा, इक्वल होगा. यानी जो यहां पर होगा वही यहां पर भी होगा. एट द फ्री सरफेस जो वाटर हमारा है वो स्टेबल कंडीशन में है, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी जीरो. इसका मतलब जो वेलोसिटी जीरो है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो. बट ओनली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अप टू व्हाट हाइट, h. So potential energy becomes rho g h. And if you consider here near the orifice, अगर हम जो छिद्र है वहां पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट भी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी आल्सो हियर. एंड वाटर रिफ्लेक्स, जो वाटर पानी बाहर निकल रहा हुआ है या लिक्विड जो भी बाहर निकल रहा है वहां पे उसकी वेलोसिटी, दैट मींस इट हैज काइनेटिक एनर्जी. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट इज हियर, दैट इज आल्सो हियर. सो बाय यूजिंग Bernoulli's theorem, you know Bernoulli's theorem follow law of conservation of energy. जो बर्नौली की थ्योरम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है. दैट मीन्स whatever total energy here, that will be also here. So we will calculate total energy at the surface and total energy at the orifice. So energy, total energy at the surface, total energy at the surface, that means atmospheric pressure, and kinetic energy 0 plus rho g h. This is the potential energy, this is the atmospheric pressure energy, this is kinetic energy which is 0, and this is potential energy. Now near the total energy at the orifice, total energy at the orifice, that means atmospheric pressure, that is same, plus half of rho v square. This is the kinetic energy per unit volume, plus rho g, and potential energy calculated always from the ground or the base surface, that is rho g h minus h. According to law of conservation, these energies will be equal. According to energy conservation, according to law of energy conservation, both energy, that means at the surface and near the orifice, will be equal. So P plus rho g h equal to P plus half of rho v square
plus rho G and H minus H. So here this and this cancel out because atmospheric pressure is here and it is also here, that will be same. So here rho G H equals half of rho V square plus rho G H minus rho G H. Now again this and this cancel out. So here you get half of rho V square equals rho G H. So this rho and this rho cancel out. This is the density of liquid. So here V square is equal to 2GH. Now V is equal to under root 2GH. This is the velocity of liquid which emerges or comes out or reflects from the orifice. This velocity can be calculated also here. Suppose if you have a body at a height from the ground h and hold it, इसको पकड़े रहिए और इसको जब पकड़े रहेंगे तो यहाँ पे इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये जैसे ही ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी जब, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यही होगी. सो हियर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. दैट मीन्स दिस लिक्विड whatever the speed maintains to this orifice, यहां से यहां तक जो भी स्पीड वो मेंटेन करेगा, इसका मतलब जो वेलोसिटी से थ्रू हमारा जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसकी भी वेलोसिटी यही होगी. दिस वाज फर्स्ट प्रूव्ड बाय टॉर्सोनी. इस चीज को सबसे पहले टॉर्सोनी ने प्रूव किया था, इसीलिए हम टॉर्सोनी की प्रमेय या टॉर्सोनी की थ्योरम भी कहते हैं. इसमें एक और चीज आप पढ़ेंगे कि when liquid emerges from the orifice, what horizontal distance covers? Here, after emerging the orifice, जो हमारा छिद्र है उससे जो वाटर हमारा बाहर निकलेगा, पहली बात देखिए इसका पाथ कैसा है, कर्व है, और कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है, पैराबोलिक. So question may be asked, what type of path when liquid emerges from the orifice? यानी अगर छिद्र से पानी अगर बाहर निकलता है, लिक्विड बाहर निकलता है, तो उसका पाथ कैसा होगा? देन योर आंसर विल बी पैराबोलिक. तो आपका आंसर होगा पैराबोलिक होगा. सो हियर हाउ टू कैलकुलेट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? दिस इज यू कैन से रेंज हियर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो टू कैलकुलेट x हियर, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the liquid. That is x is equal to distance equal to velocity into time. Velocity into time. In projectile, you already know here, whatever time water takes from orifice to bottom and orifice to this strike point, say D. That will be same. Keeping in mind, ये ध्यान रखते हुए कि किसी तरह का कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं हो रहा. यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, तभी ये मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ तक का समय क्या होगा, बराबर होगा. यहाँ की इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी को अगर हम 0 माने यहाँ से यहाँ तक की, तो फिर क्या होगा, h माइनस h इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. h इज इक्वल टू ut plus half gt square. So here h is h minus h half gt square. Initial velocity is 0 here. So here t can be calculated 2, that is 2 h minus h into upon g, that is t square. 2 h minus h upon g. So t will be under the root of 2 h minus h upon g. This is the time. This is the time from orifice to base or orifice to point B. That will be equal. Now what you have to calculate? You want to calculate this x. Now place the value of t and v. So x is equal to v is under root 2gh and under root of t is 2
H माइनस H अपॉन G. This G and G cancel out and 2 common, so you have H minus H. This is the horizontal distance covered by the liquid which is emerging from the orifice. मतलब छिद्र से जो पानी बाहर निकलेगा उसके द्वारा जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर होगी वो ये होगी ऐसे। इस ओरिफिस को अगर हम जितना टैंक में पानी भरा हुआ है उसके अगर मिडिल में कर देते हैं, यानी कि जो हमारी H है अगर हम H/2 कर देते हैं, H को अगर हम H/2 कर देते हैं, इफ यू प्लेस हियर, सो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H एंड H माइनस H/2, so you get only H. That means if you make our orifice, अगर हम टैंक में छिद्र जो करते हैं जितना वाटर लेवल है उसके मिड अगर करते हैं तो वाटर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो उतनी ही होगी जितनी हाइट तक पानी इसमें या लिक्विड फिल्ड होगा. दैट मीन दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड. ठीक है ना. तो ये जानकारी आपको इफ्लक्स वेलोसिटी या बर्नौलीज थ्योरम के अंतर्गत जो जानकारी दी है, इफ्लक्स वेलोसिटी दिया हमने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया, टाइम निकालना कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है. तो ये आप अच्छे से जानकारी तैयार कर सकते हैं इसमें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. आगे भी और भी जानकारी इसमें हम देंगे, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देंगे. प्रयास ये करिए कि जो मेरा जो वीडियो आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और दूसरे लोगों को शेयर भी करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें. थैंक्स.